You will soon see a very different Barcelona in the upcoming matches. These were Hansi Flick's words after the disaster clash. After the absolutely embarrassing performance versus Chelsea भाई. अब भाई देखो, as a Barcelona fan, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या आता है कि do I trust Hansi Flick's word? Do I believe in the old man still? 60 साल का बूढ़ा आदमी. Do I still believe in him? And honestly यार, if this question was asked of me PSG के गेम के बाद या मैड्रिड वाले गेम के बाद, तो मैंने भाई काफी लाउडली बोला होता कि हाँ, ऑफ कोर्स I trust Hansi Flick. We will see a different team in the next matches. Sure, we will. This is how it's supposed to be. But भाई I don't know anymore. Genuinely I don't know anymore. क्योंकि भाई जिस तरीके से हम खेले चेल्सी के खिलाफ, भाई हमने तो we didn't even come. We were not even in the game at any moment. भाई there was no moment in the game जहाँ पे ऐसा मोमेंट हो जहाँ पे we were competing against Chelsea 1v1. ऐसा भाई था ही नहीं. Not single moment in the game जहाँ पे हम compete कर पा रहे थे. And भाई it is not even on Hansi Flick by the players have let down Hansi Flick for the upteens time, and I don't know how many times भाई Araujo भाई यूरोपियन नाइट पे रेड कार्ड लेके मानेगा. This is भाई genuinely every time we watch him भाई PTSD हो जाता है. This is not good भाई. I feel like Araujo, मैंने डिफेंड किया. I always believe कि भाई he is a great defender. डिफेंडर भाई, वो रन स्ट्रैक करता है, डुअल्स जीतता है, वो जो हमारी टीम में लैक करता है डिफेंसिवली, वो Araujo लाता है ऑन द टेबल. बट भाई this is it भाई. This is for me भाई. This is the line I draw with Araujo. I don't know if I can trust him anymore in any games भाई, क्योंकि यार ये रिकरिंग थीम हो चुकी है भाई. इट इज नॉट कि वन ऑफ चीज होगी कि भाई PSG के खिलाफ वन ऑफ में रेड कार्ड ले लिया तो कोई बात नहीं. उसके बाद से भाई रेगुलरली वो यूरोपियन नाइट्स में आ रहा है. दिस इज, उसने इंटर के खिलाफ गोल करवाया सर्दी से, डिफेंडर असरबी ने गोल मार दिया, फिनिश कर दिया उसके सामने, और वो कुछ नहीं कर पाया. आज भाई फालतुओं की तरह सेकंड येलो कार्ड ले रहा है कुकुया के खिलाफ. क्यों कर रहा है भाई चैलेंज? व्हाई डू यू चैलेंज समबडी इन दैट? इट इज सच अ ब्रेन डेड मोमेंट भाई Araujo के हिसाब से. एंड आई फील कि यार I just feel disappointed. I'm not even surprised. I'm just disappointed to the point where I just didn't wanna watch the second half. At this point, भाई, I missed a little bit of the first half क्योंकि मेरे को नींद आ गई थी. And I'm so proud. मेरे को नींद आ गई थी. I'm so proud कि भाई मेरे को नींद आ गई, क्योंकि अगर नहीं आई होती तो मेरे को कभी नहीं आती. नहीं समझ जो मैंने देखा second half में. This is compete ही नहीं किया यार. मतलब Rafinha आया off the bench and भाई Rafinha genuinely looked so much more hungrier than most of the players on the pitch भाई. When your captain is Araujo, जो भाई फालतू वाले रेड कार्ड ले देता है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो टीम से भाई? अब भाई जुआन गार्सिया को 3 गोल खा गया तो लोग बोलेंगे, बट भाई 10 इवेंट डिफरेंस है उसके बाद 90% ऑफ द टाइम. हर बार एक्सपोज हो जाता है जुआन गार्सिया. इट इज सो इजी टू एक्सप्लॉइट अस. एंड जेन्युइनली भाई हांसी फ्लिक ने चेंजेस लाए इन द हाईलैंड में. हाईलैंड को बेन कर रहा भाई. हमको डिफेंडिंग ही नहीं आता, हमको खेलना ही नहीं आता. वी एज अ फुटबॉल क्लब डू नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल. Simple. This is the simple crux of the matter. This is what it is about. We do not know how to play football, and every other team that plays against us knows how to exploit us. Chelsea ओले कर रहे हैं हमारे खिलाफ. This is, भाई देखो, this is the most embarrassing I've ever felt as a Barcelona fan. This reminds me of the 8-2 भाई. इतना helpless मैंने तो कब feel किया था when we lost 8-2. I didn't have any hope. कभी भी आप पे बॉल होती थी, लमीन पे बॉल हो, फ्रेंकी पे बॉल हो, रफीनिया पे बॉल हो, जीरो होप कि कुछ होगा. And this is the last time I felt like this was during 8-2 bhai. And that was 8-2 bhai against one of the worst Barcelona in history. This is supposed to be the young Barcelona, the new generation wali Barcelona bhai. The Gude wali Barcelona, the one that has balls. And we didn't see any of those balls bhai. We saw loser ass players bhai. जैसे Koundé, जिस पे बॉल कंट्रोल नहीं होती, जिससे बिल्डअप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. फर्मीन लोपेज जो स्टैट पैड करता है छोटी टीमों के खिलाफ. हमने रैशफोर्ड को देखा जिसको पता ही नहीं खड़ा कहाँ होना प्रेस करते टाइम. दिस इज बेचारा बाल्डे भाई. एवरी टाइम यू सी बाल्डे ही इज कैरिंग द लेफ्ट विंग बाय हिमसेल्फ. उसको लेफ्ट विंगर भी दे दिया भाई रैशफोर्ड के तौर पे, फिर भी कैरी करना पड़ रहा है. दिस इज भाई, वी कैन नॉट गो इनटू अ यूरोपियन नाइट विद फरान टोरेस एज अ लेफ्ट विंगर. दिस इज, हाउ इज दिस पॉसिबल? इफ फरान टोरेस हमारा लेफ्ट विंगर अगेंस्ट चेल्सी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज इन अ मस्ट विन चैंपियंस लीग गेम. How can this be real? How is this my life? I grew up watching Neymar at left wing. Now I'm watching Ferran Torres. At some point हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा प्लेयर्स की क्वालिटीज को, क्योंकि भाई कब तक हम बोलते रहेंगे कि भाई इंजरीज हो रखी है हमको? कब तक हम हांसी फ्लिक को बोलेंगे कि भाई तूने चेंजेस नहीं किए, कि तेरी हाईलाइन खराब है? At one point you got to look at the players we have and you have to realize कि यार maybe they do not have the quality, maybe they do not have the quality to play at the highest level.
एंड आई चेंजेस लाने पड़ेंगे। आई थिंक भाई कुंडे इज अ ग्रेट प्लेयर, इज अ ग्रेट प्लेयर, बस उसको इन्वायरमेंट सूट ही नहीं करे एज अ राइट बैक। उसके जो फ्लॉज हैं विच इज भाई टाइट स्पेस में मैनिपुलेशन, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट होती है भाई। दिस इज इट इज सो इजी टू एक्सप्लॉइट कुंडे की टाइट स्पेस मैनिपुलेशन, क्योंकि भाई वो नहीं कर पाएगा बिल्डअप यार। उस पर 2 बंदे डाल तो ही विल लूज द बॉल 95% ऑफ द टाइम। 1% ऑफ द टाइम होगा जब उसने लमीन को खेल लेगा, लमीन कुछ कर देगा तो बच जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम कुंडे जब भी प्रेस होता है तो लमीन को दे देगा बैक टू गोल। लमीन बैक टू गोल क्या ही करेगा भाई, कुकुरेया अब इजीली डिफेंड कर लेगा उसको, क्योंकि लमीन रिसीव कहाँ करता है, लमीन रिसीव करता है हाफ वे लाइन पे, लमीन रिसीव करता है भाई अपने ही बॉक्स के पास। ये सब चीजें करता है लमीन। ही नेवर रिसीव्स नियर द ओपोनेंट टीम्स बॉक्स, ही नेवर रिसीव इन अ 1v1 सिचुएशन। कभी उसको अच्छे सिचुएशन में बॉल ही नहीं मिलती है कि कुछ करे। अब एस सवाओ को देखो तुम, जिस सिचुएशन में एस सवाओ को बॉल मिली, he always found himself in a moment where he can run at the defense and create a goal scoring opportunity. लमीन को क्या मिलता है भाई, हमारे को तो फ्रंट 3 तक ले जा। Why does Lamine have to do that? Why does only time Lamine used to get 1v1 opportunities बॉक्स के पास बॉल वो when Pedri was playing. Pedri would find a way कि भाई अकेले ही वो प्रोग्रेस कर देगा बॉल, फ्रेंकी की मदद लेगा कभी कभी, and he would find Lamine in a good spot. इसलिए लमीन जब पेदरी था तो he would play better, he would receive in better positions. बट भाई कुंडे है, ये फर्मीन लोपेस को मैं क्या, आई डिडंट इवन नो फर्मीन लोपेस वाज प्लेइंग 90% ऑफ द टाइम। दिस इज हाउ आई फेल्ट भाई। आई फील कि यार फर्मीन लोपेस भाई ही इज बेटर देन डैनी ओल्मो, बट दैट डजंट हेल्प एट ऑल बिकॉज डैनी ओल्मो इज फ्रीकिंग एस, ही इज वेरी बैड। डैनी ओल्मो इज वेरी वेरी बैड एंड वी हैव फर्मीन लोपेस एज अनदर ऑप्शन। आई फील कि भाई दिस इज जस्ट सैड कि भाई हम पे ऑप्शन ही नहीं है कैंप पे अच्छे वाले तगड़े वाले कि भाई वी कैन। तुम देखो भाई अलग टीम के कैंप के ऑप्शन देखो, कोल पाल्मर उनके पास, चलो खेला नहीं है पर कोल पाल्मर उनके पास मेन का कैंप वाला ऑप्शन है। मैड्रिड के पास जूड बेलिंगम है भाई, जूड बेलिंगम क्रिटिसिज्म देते हो तुम लोग, बट भाई वो जूड बेलिंगम है, मजाक नहीं। लिवरपूल के पास वर्ड्स है, लिवरपूल घटिया खेल रही है फिर भी उनके पास वर्ड्स है। क्वालिटी देखो टीम की भाई, तुम डेप्थ देखो चेल्सी के पास डेप्थ देखो, मैड्रिड के पास, सिटी के पास डेप्थ देखो, लिवरपूल के पास डेप्थ, तुम बड़ी बड़ी टीमों के पास डेप्थ देखो कि भाई बेंच से कौन आता है। हम पे कौन आता है भाई, अनग्रेजुएटेड पीपल आते हैं भाई, जिन पे डिग्रियां नहीं है, ये कॉलेज के एग्जाम है कल, जो स्कूल में फेल हो चुके, ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे बेंच के ऊपर। हाउ आर वी सपोज टू विन शिट भाई, कम ऑन। पिछले सीजन ओवर अचीव किया हांसी फ्लिक तो भाई लोग उस पर चढ़ गए भाई, अब तो भाई ही विल अचीव अ लॉट। अब लोग उसको बोलेंगे कि भाई तेरे वजह से नहीं खेल पा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे फिर से बोलेंगे कि मैनेजर इज नॉट एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ आवर प्लेयर्स, जो हमने शावी के साथ किया। एंड आई फील भाई शावी वाज रॉन्ग जब उसने बोला कि भाई वी कैन नॉट कम्पीट फॉर 2 years, हमको ये। आई फील शावी वाज रॉन्ग फॉर सेइंग दैट टू द प्लेयर्स हु वन इन द लीग। दिस इज नॉट फेयर टू द प्लेयर्स। बट भाई हांसी फ्लिक को हमेशा बोलता है कि भाई वी विल विन, वी आर गुड इनफ, वी आर दिस, वी आर दैट, बट कुछ तो हेल्प करो भाई, उसको कम से कम डेप्थ तो ले आओ भाई, बेंच वाले प्लेयर ही ले आओ, कम से कम कुछ तो कर पाए बेचारा। मतलब ही हैज नो ऑप्शंस। उसको भाई 2 प्लेयर होते हैं उस पर बेंच पे हर बार, वही 2 प्लेयर होते हैं जो मुश्किल से ले पाता है। वो दोनों प्लेयर इंजरी से रिटर्न कर रहे होते हैं, इसलिए वो बेंच पे होते हैं। समझ, दिस इज सो सैड। हमारे स्टार्टर्स बेंच पे होते हैं, देन ओनली भाई फ्लिक हैज एनी ऑप्शंस टू ब्रिंग समबडी ऑन। दिस इज नॉट गुड। आई थिंक भाई वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव हिम बैकिंग, कि हम गरीब हैं, हम पे पैसे नहीं है, हम डेप्थ में, हम स्टेडियम खोल रहे हैं उसमें 60,000 लोग नहीं घुस पा रहे। दिस इज क्लब इज अ डिजास्टर राइट नाउ। इलेक्शन आने वाले हैं भाई, everything is messed up by generally, और इस मैं Chelsea first of big up to Chelsea. I haven't praised them even once in this video, but by big up to Chelsea भाई, unbelievable performance भाई, they completely deserve the victory भाई। They outplayed us, they outmaneuvered, they outdid us in every aspect of the game। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने उनसे अच्छा किया, except for just watching. We just watched them play good football, that was it. They played like Barcelona should play against any other team. Genuinely भाई, I would be proud if Barcelona played like Chelsea today. Then only this is how good Chelsea played. And but this is how it is. I am embarrassed. I am as a Barcelona fan. I am disappointed, but I am not surprised because is this new? क्या अराओ का रेड कार्डिंग नई चीज़ है तुम्हारे लिए? क्या भाई हमारे प्लेयर्स का एफर्ट नहीं देना नई चीज़ है तुम्हारे लिए? क्या हमारे प्लेयर सेकंड बॉल नहीं जीत पा रहे हैं, इजी ड्यूअल हार जाते हैं, हेडर्स नहीं जीत पाते हैं? इज दिस अ न्यू थिंग टू यू? This has been happening for years and it will keep happening until we make some changes in the squad. Simple as that भाई। हम पे नहीं है भाई, हम पे नहीं है हेंडरसन जैसे प्लेयर जो भाई लिवरपूल पे थे, भाई भाग भाग के डिस्टेंस कवर कर ले। Even though Henderson was not Frankie de Jong on the ball, but भाई
फ्रैंकी डी यॉन्ग इज नॉट अ हेंडरसन ऑफ द बॉल। हम पे प्रोफाइल नहीं है कि हम सिर्फ की भाई हेवी मेटल फुटबॉल भाई वी हैव केप्ट अवॉइडिंग इट, क्योंकि हम गोल मार देते थे, हम 6 गोल मार देते थे, हम 5 गोल मार देते थे, हम 4 खाते भी थे, हम 2 ऑफसाइड गोल भी खाते थे भाई। ऐसे करते करते फाइनली वी हैव अटैकर्स कब तक कैरी करेंगे तुमको भाई, कभी ना कभी तो थक जाएंगे अटैकर, कभी ना कभी तो हाथ जोड़ लेंगे कि भाई नहीं हुआ गोल आज हमसे। और जब नहीं होता भाई, दिस सेम गेम लास्ट सीजन रेड कार्ड लेके भी एक गोल जरूर मार रहे थे, तो अटैकर ओवर परफॉर्म कर रहे थे भाई, देवर क्रेजी गुड फॉर्म, रफीनिया था, लमीन था, लेवेंडोस्की था, बट भाई आज नहीं कर पाई एक भी गोल। व्हाई? बिकॉज भाई वी आर बैक टू आवर अटैकर्स आर बीइंग बैक टू नॉर्मल प्ले, वो अपने स्टैंडर्ड पे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग वेरी गुड। Attackers are not bad. We are not providing them with good environment. Simple as that. Last season ओवर परफॉर्म कर दिया अटैकर्स ने, तो हम खुश हो गए भाई, कुछ भी गोल मार दो, हम 4 मार देंगे, हम 5 मार देंगे। अब भाई सामने वाली टीम 4 मारती है तो हम 2 पे अटक जाते हैं। दिस इज हाउ इट इज। मैं इसी के साथ भाई आई एम टायर्ड, आई एम फेड अप। आई वाज सो एक्साइटेड टू वॉच द नेक्स्ट गेम एट द कैंप न्यू अलावेस के खिलाफ, बट भाई वो एक्साइटमेंट भी जा चुकी है, मर चुकी है एक्साइटमेंट। आई एम loathing myself right now. I am very sad. भाई one more thing I would like to say is कि भाई no matter what happens भाई, एक चीज हमेशा होती है बार्सिलोना के साथ, अगर सीजन चेंज होने वाला होता है ना बार्सिलोना, तो it always starts with the Atletico Madrid game. Guess what? Who we play in the next few weeks? In December भाई we play Atletico Madrid game. We play against them at home. And I will provide you example भाई, last season जब हमने बहुत घटिया नवंबर खेला, तो दिसंबर में हम एथलेटिको मैड्रिड से खेले थे, एंड वी लॉस्ट दैट गेम, बट आर्ग्यूबली वी प्लेड आवर बेस्ट गेम ऑफ द सीजन। वी वर अनबिलीवेबली गुड। 2014-15 वाले सीजन में एथलेटिको मैड्रिड के पहले हम एथलेटिको मैड्रिड से खेले थे हम जनवरी में 2015 के। उसके पहले भाई लुइस एनरिके आउट चल रहा था भाई, लुइस एनरिके को बाहर कर दो। अब भाई उस एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम में कैंप न्यू पे 3 गोल मारे हमारे फ्रंट थ्री ने, उसके बाद सब बदल गया। एंड आई फील भाई इफ एनीथिंग इज गोइंग टू चेंज, if Flick is saying भाई अपकमिंग मैचेस में एक नई बात देखने को मिलेगी तुमको, then it will happen in the Atletico Madrid game मेरे हिसाब से। I think if we are going to change, we will see it in the Atletico Madrid game. If we are not going to change, we will not change ever again if we don't change in the Atletico Madrid game. इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ भाई। पीस आउट एंड हैव अ गुड डे।